Greetings to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. और हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। What a joy it is to come and share the word. और इतने आनंद की बात है कि हम आकर वचन को बांट रहे हैं। You know, the Bible says that everything can be changed, but you cannot change the word of God. बाइबल कहता है आप हर एक चीज को बदल सकते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को आप नहीं बदल सकते हो। You cannot change, you cannot hold the word of God. और आप परमेश्वर के वचन को ऐसे बांध कर नहीं रख सकते हो। And it is true that the word of God cannot be held. और ये बात सच्ची है कि परमेश्वर का वचन हम ऐसे बांध कर नहीं, रोक कर नहीं रख सकते हैं। The virus is there, everything is there, but the good part is the word of God is still flowing, it's still growing in each one's life. और हमारे आजू बाजू वायरस है, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का वचन अभी तक हमारे जीवनों में बह रहा है। And that's what God wants exactly. और परमेश्वर को वही चाहिए। God does not want His work to be stopped. परमेश्वर को नहीं चाहिए कि उसका जो चलना है वो रुक जाए हमारे जीवनों So में। no matter whatever happens, और कोई बात नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, God's word should flow into our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में बहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So today God has put something in the heart. और आज परमेश्वर ने कुछ तो मेरे मन में डाला है। Okay, and the topic would be, और आज का संदेश है, come out of your rottenness. और आपके सड़े हुएपन से आप बाहर आ जाओ। How to come out of your rottenness. और आपके सड़े हुएपन से आप कैसे बाहर निकलोगे। So before we start, और शुरुआत करने से पहले let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Now Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, और अब पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से Father, we thank you. धन्यवाद करते हैं। We give you all the praise, everything, Lord. और सारी स्तुति, सारी महिमा देते हैं। Father God, as we are here and people who have joined in are joining in for the word of God, वो परमेश्वर जैसे हम यहाँ पर है, जैसे लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, let them be blessed with the word. और वचन से उनको आशीष पाने दे। Let the word become live into our life. और जो वचन है हमारे जीवन में एक जीवन लाने दे। Father God, we speak life in Jesus' name. और हम घोषित करते हैं जीवन यीशु के नाम से। Father, whatever today is coming, it is coming from heaven, my Master God. जो भी कुछ आ रहा है वो स्वर्ग से आ रहा है। Father God, every works of the flesh be deactivated right now in Jesus' mighty name. परमेश्वर हर एक शरीर का काम वो भी डीएक्टिवेट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। Father God, we thank you, and Lord, we believe that we are walking in the Spirit of God. और विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा में चल रहे हैं। No works of the flesh. और शरीर का कोई काम नहीं। No self-exaltation. और खुद की बड़ाई नहीं। No self-glory, O Lord. और खुद की महिमा भी नहीं। Father God, everything belongs to you, और Father. परमेश्वर सभी चीज आपकी है। Because you are the author and finisher of our faith. क्योंकि आप वो शुरुआत और अंत हो हमारे विश्वास के। You are the Alpha and the Omega. और आप अल्फा और ओमेगा हो। The beginning and the end. और वो शुरुआत और वो अंत। Everything belongs to you, Jesus. और हर एक चीज आपकी है। This nation belongs to you, O और ये Lord. राष्ट्र आपका है। We belong to you, O Lord. हम आपके हैं। We thank you, Father. धन्यवाद पिता। Give you all the praise and glory. सारी स्तुति, सारी महिमा देते We हैं। thank you, we welcome you, we welcome you, Holy Spirit, in this place. धन्यवाद करते हैं, इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं। Give the spirit of listening, my Master, Lord. और परमेश्वर हमें सुनने की आत्मा दे। Father God, give us the spirit of understanding, Holy Spirit. और पिता परमेश्वर हमें समझने की आत्मा दे। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के महान नाम से Amen. आमेन। So God put a word early in the morning today. और आज सुबह के समय में परमेश्वर ने मेरे दिल में एक वचन को डाला। Just one word. और सिर्फ एक ही शब्द, वचन, Rottenness. और सड़ा हुआपन। So I was meditating on the word rottenness. What rottenness exactly means. और मैं उस पे मनन कर रहा था कि सड़ा हुआपन का मतलब क्या है। And I believe God wants us to God is telling us to come out of the rottenness. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमारे सड़े हुएपन से हमें बाहर आना चाहिए। So it is very important to know what is rottenness. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये जानने के लिए कि सड़ा हुआपन क्या है। Okay, in a layman's term. और लेमैन्स टर्म के विषय में, You know, when you go to a vegetable market, और जो आप सब्जी ऐसे बाजार में जाते हो, you know, you see rotten tomatoes and other vegetables. और आप देखते हो वहाँ पे सड़े हुए टमाटर होते हैं और बाकी सारी सब्जियां होती So the हैं। first thing when God put this word rottenness, the tomato came in the vision. और जब पहला चीज जो परमेश्वर ने इस शब्द मेरे अंदर डाला तो मेरे सामने एक दर्शन आया, वो है टमाटर का। You know, imagine you are going to buy a vegetable. और सोचो आप एक ऐसी सब्जी लेने जा रहे हो And there are tomatoes over there. और वहाँ पे टमाटर है। And
in the bunch of the tomatoes there is one rotten tomato. और उस टमाटर के बीच में एक सड़ा हुआ टमाटर है। How does it look? और वो कैसे दिखता है? It's completely decayed, और वो पूरी तरह से सड़ा हुआ है decomposed, और पूरी तरह से डिकम्पोस्ट है, and there are worms in it, और उसके अंदर कीड़े हैं, and of course nobody is going to buy that. और कोई भी उसे खरीदेगा नहीं। Okay, so rottenness is getting decomposed or unusable. और सड़ा हुआ का मतलब है कि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। Okay, rottenness is becoming unusable. और जो सड़ा हुआपन है उसका मतलब है कि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Okay, you don't look good, you don't feel good, it doesn't taste good. That is rottenness. और आपको ऐसे वो अच्छा भी नहीं दिखता है, वो ऐसे स्वाद में अच्छा भी नहीं लगता है और लेने में भी अच्छा नहीं लगता Okay, है। as soon as you see it, you be away from और that. जैसे आप उसे देखोगे तो आप उसे दूर भाग जाओगे। And even when you pick it up, और जब उसे हाथ में भी ले लोगे, you know, when you see inside, it is full rotten. और अगर आप उसे अंदर से देखोगे तो पूरी तरह से सड़ा हुआ है वो। Outside the skin might still be the red skin, और बाहर जो है उसका जो लाल कलर का जो स्किन है वो फिर भी रहेगा, but inside it is completely finished. लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से सड़ा हुआ है। So rottenness is decomposing or getting corrupt or getting unusable. और सड़ा हुआ का मतलब है कि वो फेंकने के लायक है या उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते It is not edible. और वो ऐसे हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। So anything that is rotten, we cannot use it. और जो भी चीज अगर सड़ी हुई है तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते Okay, हैं। we do not eat rotten food. और हम सड़ा हुआ खाना भी नहीं खाते हैं। Okay, so anything that is not usable, we don't take it. और अगर कोई भी चीज अगर वो इस्तेमाल नहीं हो पाती है तो हम उसे लेते नहीं है। Now let us learn what rottenness is in our life. और आइए हम सीखेंगे कि सड़ा हुआपन हमारे जीवन में क्या होता है। I want to tell you this important. और मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना Okay, है। and if you are making notes, do make it. और अगर आप उसे लिख रहे हैं तो उसे लिख लीजिए। Rottenness is not from the outside, it starts from the और inside. सड़ा हुआपन जो है वो बाहर से नहीं है लेकिन वो अंदर से शुरुआत होता है। Yes. Rottenness is not starting from the outside, it starts from और inside. सड़ा हुआपन है वो बाहर से नहीं शुरुआत होता है लेकिन वो अंदर से शुरुआत होता है। So everything is the matter of heart. और हर एक चीज जो है वो हृदय के अंदर की जो बात है उसकी कहलाती है। Hallelujah. हालेलुया। Everything is the matter of heart. और हर एक चीज जो हृदय में है वो कहलाती है। Heart is inside, it's not outside. और जो हृदय है वो अंदर है वो बाहर नहीं है। And everything in our life, in your life, in my life, it starts from our heart. और हर एक चीज आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में शुरुआत होती है अपने दिल से। If you turn to Matthew chapter 9 verse 4. और अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 4था वचन, We will understand it better. और हम अच्छे से समझेंगे। Yes, Matthew chapter 9 verse 4. और मत्ती 9:4, यीशु ने उसके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? Yes. Can we read it again? Matthew chapter. और मत्ती की किताब में जाएंगे, मत्ती का 9:4। Yes. यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, Yeah. तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? Okay. So if we read the above scripture, अगर हम आगे का वचन, पहले का वचन पढ़ेंगे, okay, let's read it. और आइए हम पढ़ेंगे। Chapter 9 verse 1. So he got into a boat, crossed over, and came to his own city. Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer, your sins are forgiven you. And at once some of the scribes said within themselves, the man blasphemes. But Jesus, knowing their thoughts, said, Why do you think evil in your hearts? और वचन कहता है, मत्ती 9:1 से पढ़ेंगे, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। Okay, so what happened? Jesus went into his own city. और क्या हुआ? यीशु मसीह अपने ही शहर में गए, And some of the people, they got a paralytic
to get healed. और कोई लोग वहाँ पर लकवे को ले आए कि ताकि वो चंगाई पाए, Okay, so these people, they got the paralytic to Jesus so that he can be healed. ताकि ये लोग जो है वो लकवे को लेकर आए ताकि वो जो लकवा है वो चंगा हो जाए। And what was the reaction of Jesus? और यीशु मसीह का ऐसे रिएक्शन क्या था? Did he run away from the paralytic? और क्या वो भाग गया उस लकवे से? Did he tell him that I cannot heal you? और क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं तुझे चंगा नहीं कर सकता हूँ? No, he encouraged. नहीं, उसने वहाँ पे उनको प्रोत्साहित किया। Son, be of good cheer. और उन्होंने कहा, हे पुत्र धारस बांध दे। Yes. God is a God of encouragement. और परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर है। He does not want the rottenness to be into our hearts. और वो नहीं चाहता है कि सड़ा हुआपन हमारे दिलों में रहे। First thing that Jesus said before he can say that you are healed, he said, be of good cheer. और हमारे चंगाई, परमेश्वर ने चंगाई करने से पहले उन्होंने ये कहा कि हे पुत्र धारस बांध। Before he said that your sins are forgiven you, he said, be of good cheer. और ये करने से पहले कि तुम्हारे पाप माफ हो चुके, उन्होंने कहा हे पुत्र धारस बांध। Be of good cheer. That's what God is saying this morning. और इस समय परमेश्वर यही कह रहे हैं, हे पुत्र धारस बांध। No matter you are suffering from a long time. और कोई बात नहीं, आप कितने भी दिनों से और कितने भी समय से दुख उठा रहे हो। This man was paralytic. Physically, you may be paralytic in so many areas of your life. और शायद ये जो व्यक्ति था वो बहुत दिनों से ऐसे लकवे में था और शायद आप अपने जीवन में ऐसे लकवा होंगे। You may be stagnant in so many places in your life. और इतने सारे जगह पे आपके एक ही जगह रुकावट हुआ होगा। There may be spiritual stagnancy today with you. और आपके साथ आपके आत्मिक जीवन में रुकावट होगा। Maybe you trust God, but somewhere while walking you lost everything. और शायद आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं आप खो गए हो। And now you don't trust Him. और अभी आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। Maybe there are issues of faith with you this morning. और शायद इस सुबह आपके जीवन में विश्वास की कोई समस्या हो। But I want to tell you what the Lord says. लेकिन मुझे आज सुबह कहना है जो परमेश्वर कहना चाहता है। The Lord says, my son, my daughter, now is the time of you be a good cheer. और परमेश्वर कह रहा है इस सुबह मेरा बेटा और मेरी बेटी अभी वो समय है कि आप धारस बांध कर रखो। Because the time of that breakthrough has come. क्योंकि वो समय है विजय आश्चर्यक्रम का, वो आ चुका है। The time of the good news has come. और वो खुशखबरी का समय आ चुका है। The time of your healing has come. और आपकी चंगाई का जो समय है वो आ The चुका है। time of your deliverance has come. और आपके छुटकारे का समय आ चुका है। And it's a good news. और ये खुशखबरी है। And because it is a good news, और क्योंकि ये खुशखबरी है, you and I need to be of good cheer. और आप और हमें ऐसे धारस बांधने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. And some of them said, और कुछ लोगों ने कहा, this man blasphemes. और वचन कहता है इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। Yes, so why did they think that? और ऐसे लोगों ने क्यों सोचा? Because Jesus said your sins are forgiven you. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप माफ हो चुके हैं। And these people could not believe that somebody could forgive them. और ये लोगों को ऐसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई तो उन्हें माफ कर सकता है। And what did they say? और उन्होंने क्या कहा? You know, this man is mocking God, is blaspheming God. और ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। But Jesus, knowing their thoughts, लेकिन यीशु मसीह उनके विचारों को जानते थे। what did Jesus know? और यीशु मसीह क्या जानते थे? Jesus only doesn't know the outer appearance, he knows the very thoughts inside of our mind. और यीशु मसीह सिर्फ आपकी बाहरी जो चीज है वो नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अंदर गहरे आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके विचारों को वो सब जानते हैं। Many people play hide and seek. और बहुत सारे लोग ऐसे छुपा छुपी खेलते हैं। Outside they're so good, so spiritual. और बाहर इतने आत्मिक दिखाते हैं, But inside लेकिन अंदर their thoughts are evil. और उनके जो विचार है वो ऐसे दुष्ट है। Their thoughts are not to prosper. और उनके विचार ऐसे उन्नति में लाने के लिए नहीं है। So Jesus और didn't see them from outside. और यीशु मसीह ने उन्हें बाहर से नहीं देखा। The Bible says in verse 4, but Jesus knowing their thoughts. और बाइबल कहता है चौथे वचन में यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। And what did Jesus say? और यीशु मसीह ने क्या कहा? Why do you think evil in your hearts? तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? Evil in your hearts. और आपके दिल में आप ऐसे अलग अलग दुष्ट के विचार क्यों कर रहे हो? The Bible says, बाइबल कहता है whatever out of abundance of your heart your mouth speaks. और बाइबल कहता है जो आपके हृदय में है वही आपके मुंह पर आएगा। Abundance. So whatever is collected in your heart, it will come out. और जो भी आपके दिल में आपने जमा करके रखा है वो आपके मुंह से बाहर आएगा। If you are rotten inside,
then you will be rotten outside. और अगर आप अंदर से ही सड़े हुए हो तो आप बाहर से भी सड़े हुए होगे। So the root is not the outsider. और जो जड़ है वो बाहरी ऐसे दिखावटी नहीं है। The root of the rotten fruit is inside. और जो वो सड़ा हुआ फल का जो जड़ है वो अंदर है। Okay? So we don't have to deal with the outside person. We have to deal with the inside. और हमें ऐसे बाहरी व्यक्ति को नहीं ऐसे सुधारना है, लेकिन हमें अंदरूनी व्यक्ति को सुधारना है। Rottenness is not from outside, it starts from inside. और जो सड़ा हुआपन है वो बाहर से नहीं है, लेकिन वो अंदर से है। Let us look one more scripture here now. आइए हम और एक वचन को देखेंगे। Psalms 44 और भजन संहिता 44 verse 21. और 21वां वचन। Psalms 44 और भजन संहिता 44 verse 21. और 21वां वचन। Okay? और हम जाएंगे भजन संहिता 44 21वां वचन। वचन कहता है, तो क्या परमेश्वर इसका विचार नहीं करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। Yes. What does God know? परमेश्वर क्या जानता है? He knows the secrets of the heart. और परमेश्वर आपके दिल के सब विचारों और आपके भेदों को जानता है। I want to ask you something today. और मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है। How long can you keep the secret? आप हर एक भेद को कितने समय तक आप अंदर रख सकते हो? How long can you hide from His presence? और उसकी उपस्थिति से कितने दूर तक आप छिप सकते हो? How long you and me are ready to suffer? और हम कितने समय तक हम ऐसे दुख उठा सकते हैं? How long can we not be submitted to God? और हम कितने दिनों तक या कितने समय तक परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहेंगे? The Bible says, for He knows the secrets of the heart. और बाइबल कहता है कि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। You maybe have a secret with other people in your life, और आपके जीवन में दूसरे लोगों के साथ आप ऐसे भेद को बांटते होंगे, but don't have a secret where God wants to expose you. लेकिन वैसा भेद मत रखिए जब परमेश्वर आपको सभी के सामने ऐसे प्रकट करेगा। Let me put this across with that. मुझे ऐसे उसे कहने दो, In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में there are no secrets. ऐसे कोई भेद वाली बातें नहीं होती है। Either you are transparent with the Lord or you are not. या तो आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह से ऐसे खुले से ट्रांसपेरेंट रहो, या तो मत रहो। Okay, you choose one. Either you be transparent or otherwise you wait for your shame to come. और या तो आप एक चुनो, या तो परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट रहते हो, या तो अपने आप अपने शर्म में ले आओ। I'm not saying God wants to do that for you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर वही चीज करेगा आपके I'm साथ, saying God knows the deepest secrets. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर गहरे जो दिल में जो भेद होते हैं वो जानते हैं। Now secrets can be anything. और भेद कुछ भी हो सकते हैं। Okay, I'm not saying for people who pray secretly or do things secret for the kingdom of God. I'm not talking on that. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे प्रार्थना करते भेद में जो चीज करते, मैं उन लोगों के बारे में ये नहीं कह रहा। Continue doing that and God will reward you openly. और आप जारी रखिए वो करने के लिए, परमेश्वर आपको खुलेआम उसका फल देगा। But I'm talking about the dark secrets. लेकिन मैं वो अंधकार के भेदों की बात कर रहा हूँ। Okay, so what happens is there is a dark secrets, और अंधकार के भेद होते हैं, and then you put on something from up. और हम उसके ऊपर से कुछ ना कुछ से डालते हैं। But I tell you, लेकिन मैं कहता हूँ that thing वो चीज is a rotten part of your life. और वो आपके जीवन का सड़ा हुआ भाग है। Okay, when the mud is there, जब मट्टी है, don't take up the carpet and put the mud down. The mud is still there. और आप चटाई को लेकर मत जाइए, लेकिन जो मट्टी है वो नीचे है। It's time to sweep everything in the name of Jesus. और अभी समय है कि हर एक चीजों को हम ऐसे पोंछ दे, हर एक चीजों को हम बाहर निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। It's time to confess and to repent before God and come back to Him. और ये समय है कि परमेश्वर के हम सामने हम पश्चाताप करें और फिर से उसके पास वापस आए। So why the rottenness comes? और ये सड़ा हुआ जो है वो क्यों आता है? So we know now that the rottenness is not the problem from outside, it is from the inside. अभी हम जानते हैं कि सड़ा हुआपन है वो बाहर से नहीं है, लेकिन वो अंदर से है। You are rotten outside because you are rotten inside. और आप बाहर से सड़े हुए हो क्योंकि आप अंदर से सड़े हुए हो। But from where this rottenness comes? लेकिन ये सड़ा हुआपन कहाँ से आ रहा है? It comes through hurts. वो ऐसे जो दुख चोट होते हैं आपके अंदर, उधर से आता है। Okay, it comes through your mindset. और आपके जो सोच विचार है वहां से आता है।
So you may be hurt with somebody. और आप किससे आपको ऐसे चोट या दुख पहुंचा होगा। Okay, maybe through words, maybe through actions, maybe physically, mentally, emotionally, wherever. और शायद उनके शब्दों से, शायद उनके कार्यों से, शायद उनके जो वचन, जो विचार बोलते हैं उन वचनों, उन विचारों से। But if you don't ask God to heal you and deliver you from these things, you will soon be rotten. लेकिन अगर आप परमेश्वर से मांगोगे नहीं कि आपको वो शुद्ध करके छुटकारा दे, तो आप जल्दी ही आप ऐसे सड़ जाओगे। Many circumstances come in life. और बहुत सारे परिस्थिति आती है जीवन में। Not every day is the same day. और हर रोज वही दिन नहीं है। But we have the same God for every day. लेकिन हर रोज हमारे पास वही परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। We have the same God for every day. और हर रोज हमारे पास वही परमेश्वर है। There are times, there are good times, there are bad times, everything is there. और समय होता है जहाँ पे अच्छे दिन होते हैं, समय होता है जहाँ पर बुरे दिन होते हैं। But the Bible says God is good all the time. लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर भला है हमेशा के लिए। Okay, He is good all the time. No matter our times are good or bad, but He is good all the time with us. और परमेश्वर भला है हमेशा के लिए, कोई बात नहीं, हमारा जो समय है वो अच्छा है बुरा है, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर भला है हमेशा के लिए। Amen. Amen. God is good all the time. परमेश्वर भले है हमेशा के लिए। Yesterday we read, कल हमने पढ़ा He has the plan to prosper and not to harm. और उनकी योजना है हमें उन्नति लाने के लिए, लेकिन हानि पहुंचाने के लिए नहीं। Okay, He has the plans to prosper and not to harm us. और कल हमने पढ़ा कि उनकी जो योजनाएं है हमें उन्नति सफलता में लाने के लिए, लेकिन हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। He has a plan for our hope and future. और हमारे आशा है हमारे भविष्य के लिए। So maybe your past hurts. और शायद आपके ऐसे पुरानी जो विचार या पुराने हर्ट्स है, Maybe a person. और आप या तो एक व्यक्ति, Maybe finances. और या तो आर्थिक रीति, Maybe relationships. या तो रिश्ते, Whatever the reason is, और जो भी कोई कारण है, I want to tell you nothing is greater than the power of God. और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज बड़ी नहीं है परमेश्वर के सामर्थ्य And से। that power is going to break these things in your life today. और वो सामर्थ आज सभी चीजों को तोड़ेगी आज आपके जीवन में। If you believe, you need to receive it and you need to say, Lord, here I am ready to be broken and made once और अगर again. आप विश्वास करते तो आपको परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे तोड़कर आप मुझे फिर से नया बना दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Unless you are not broken, you cannot be recreated. और जब तक आप टूटोगे नहीं, आपको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। Unless your hurts are not broken, और जब तक आपके जो चोट और दुख है वो तोड़े नहीं जाते your हैं, mindsets are not broken, आपके जो विचार है वो तोड़े नहीं जा you सकते cannot be a हैं। new creation. आप एक नई सृष्टि नहीं बन सकते। That's why the Bible focuses on the renewal of our mind. और इसलिए बाइबल कहता है हमारे विचारों को हम हर रोज शुद्ध करें। Every day, हर रोज renew your mind in Christ. और यीशु मसीह में आपके विचारों को आप शुद्ध करें। Don't be the old wineskin, और ऐसे पुराना जो है वाइन स्किन मत बनो, the new wineskin. और नया वाइन स्किन। Don't have the old wine. और जो आप अपने जीवन में पुराना ऐसे वाइन मत रखिए, Be the new one. और नया बनिए। The new wine is full of His Spirit. और जो नया वाइन है वो पूरी तरह से उसकी आत्मा का है, The new wine is full of His presence. और पूरी तरह से उसकी उपस्थिति का है। The new wine is full of His glory. और जो नया वाइन है पूरी तरह से उसकी महिमा का The है, new wine is full of His wisdom. और पूरी तरह से उसकी बुद्धि का है। The new wine is not of law but it is of grace. और वो व्यवस्था का नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अनुग्रह का है। The new wine is of new anointing. और जो नया वाइन है वो पूरा तरह से अभिषेक का है। Get ready to receive that new wine in your life. और तैयार हो जाइए कि ना वो नए वाइन को ग्रहण करें अपने जीवन में। Receive it in Jesus' mighty और उसे name. ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम Let the dead bury the dead, but you walk with the living और God. जो मरा हुआ है उसे अपने मुर्दे को गाड़ने दो, लेकिन आप परमेश्वर के साथ चलो। Everything that is dead, let it be buried. और हर एक चीज जो मरा हुआ है उसे अपने आप को गाड़ने दो। Some people, what happened? और कुछ लोग क्या होता है, They like to dig dead things out. और वो ऐसे उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो मरी चीजों को ऐसे खो दे। Whatever is gone is gone. और जो भी चीज चला गया है। But out of God now you are born. लेकिन परमेश्वर की ओर से अभी आप उत्पन्न हुए हो। Hallelujah. हालेलुया। Whatever is finished, no need to meditate it. और जो भी चीज पीछे खत्म हो चुकी है उसके फिर से मनन करने की जरूरत नहीं I है। want to tell you, God is writing something new in your और life. मैं कहता हूँ परमेश्वर कुछ नया चीज लिख रहे हैं आपके जीवन में। Amen. आमेन। So we read everything is the matter of heart.
और हमने पढ़ा है कि हर एक चीज ऐसे हृदय की बात होती है। People behave outside like that. You know, some people you will see they will behave very immaturely. और कुछ लोग आप देखोगे कि वो बहुत ऐसे नासमझ जैसे बर्ताव करते हैं। It is not that God has not given them और wisdom, वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि नहीं दी है, but still they will become stupid. लेकिन फिर भी वो ऐसे मूर्ख जैसे बर्ताव करते हैं। Some people they can't understand basic ethics how to behave, और कुछ लोगों को ऐसे वो भी नहीं कैसे बर्ताव करते वो भी नहीं पता है। and we think that they are uneducated. और हम सोचते हैं कि वो उन्होंने शिक्षण नहीं पाया है। No, no, they are not uneducated. और ऐसा नहीं कि उन्होंने शिक्षण नहीं पाया है। The root is that they are rotten inside, and that's why they are behaving like और that. वो जड़ ये है कि वो अंदर से ऐसे वो सड़े हुए, इसलिए वो बाहर ऐसे बर्ताव करते They हैं। are hurt inside. और अंदर से उन्हें दुख हुआ है, चोट लगी They are है, jealous inside. और अंदर से वो ईर्ष्या रखते हैं। And whatever is inside, then it comes और outside. जो भी अंदर होता है वो बाहर आता है। Okay, so the rottenness is not from outside, it is from inside. और सड़ा हुआपन जो है वो बाहर से नहीं लेकिन वो अंदर से आता है। And I tell you, your rottenness is not greater than the freshness of God. और मैं कहता हूँ आपका जो सड़ा हुआपन है वो ज्यादा महान नहीं है परमेश्वर की ताजगी से। Hallelujah. हालेलुया। God can do everything new, fresh into your और life. परमेश्वर हर एक चीज नया और ताजा कर सकता है आपके जीवन में। Old things have passed away. और पुरानी चीजें चली गई They are है। not passing away, they have already done dead. और वो ऐसा नहीं कि वो जा रही है, लेकिन वो पहले से ही जा चुकी है, मर चुकी है। Now what God says? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? Behold, और रुक जाओ, I make all things new. और मैं हर एक चीजों को नया बनाता हूँ। So there is no connection between your old past and the newness of God that is His और ऐसा gift. कोई रिश्ता नहीं है जो आपके पुराने सड़े हुए की बातें परमेश्वर की नई ताजी बातों के साथ। Hallelujah. हालेलुया। If you are rotten, और अगर आप सड़े हुए हो you will be soon forgotten. और आप जल्दी ही भूला जा सकते हो। Okay, let me repeat that. Very interesting. और बहुत ही ऐसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। And all glory to God और परमेश्वर की सारी महिमा हो, because He is leading everything. क्योंकि वो हर एक चीज की अगुवाई कर रहे So हैं। if you are rotten, और अगर आप सड़े हुए हो you will be forgotten. आप जल्दी से भूला जा सकते हो। Listen, nobody wants to be associated with someone who is stagnant, और ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी के साथ जुड़ना चाहता है जो एक जगह पर रुका हुआ है, who is perishing, और जो ऐसे नष्ट हो रहा है, who is unsuccessful, और जो अपने जीवन में सफलता नहीं पा रहा है, and who is dead. और जो मरा हुआ है। Nobody, you, me, anybody, we don't want this association. और कोई भी, हम आप या कोई भी ऐसे नहीं, हमारी संगति नहीं हम चाहते हैं ऐसे। Who will be associated with you if you are stagnant, if you are at one place? और अगर एक जगह पर हो, अगर आप एक जगह पर रुके हुए तो कौन आपके साथ संगति में Somebody आएगा? will encourage you 1 time, 2 time, 3 time, 10 times, 15 times, but if you are not moving on with the Spirit of God, who wants to be associated और with आपको you? 1 बार 2 बार 3 बार कोई ना कोई आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं बह रहे हो तो कौन आपके साथ संगति में आएगा? If you are perishing, who wants to be with you? और अगर आप ऐसे नष्ट हो रहे हो तो किसको इच्छा है आपके साथ रुकने के लिए? If you are unsuccessful, और अगर आप सफलता नहीं पा रहे हो how can people associate with you? तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? What are they going to learn? और वो क्या सीखेंगे आपसे? And if you are dead और अगर आप मरे हुए हो in the Spirit, आत्मा में, in the works that you do, और जो काम आप कर रहे हो, who wants to associate? और कौन आपके साथ जुड़ना चाहता है? Then the problem comes, समस्या फिर आती है, then you and I think और फिर आप और हम सोचते हैं people are ignoring us. और जो लोग हैं हमें ऐसे देख नहीं रहे हैं। We take our stagnancy, our unsuccess, our deadness, we take it as persecution for Christ. और हमारा जो मरा हुआपन है, हमारा जो सड़ा हुआपन है, हमारा जो एक जगह पर रुकना है, वो हम यीशु मसीह के लिए सताव के जैसे कहलाते हैं फिर। And then we go and say we are martyrs for God. और हम फिर कहते हैं कि हमने यीशु मसीह के लिए हम मार्टिर बन चुके हैं। You know, we sacrifice so many things for और God. हमने परमेश्वर के लिए इतनी सारी चीजों को बलिदान त्याग कर दिया है। You know, today I have no one with me. और आज मेरे पास कोई भी नहीं है मेरे I'm साथ, walking alone with God. और मैं परमेश्वर के साथ अकेला चल रहा हूँ। Listen, God has not called you to walk alone. और सुनो, परमेश्वर ने आपको अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया है। God has called you to walk in the unity in the name of और Jesus. परमेश्वर ने आपको एक साथ चलने के लिए बुलाया है यीशु मसीह के नाम में। Today you are alone because you are stagnant. और आज आप अकेले हो क्योंकि आप ऐसे रुके हुए You हो, are alone because you are perishing.
और आज आप अकेले हो क्योंकि आप नष्ट हो रहे हो, Because you're unsuccessful, you are dead. क्योंकि आपने सफलता नहीं पाया है और आप मरे हुए हो। Don't blame God for that. और परमेश्वर को ऐसे दोष मत लगाओ उसको। God has given you and me the anointing, the authority to break everything in Jesus' और name. परमेश्वर ने आपको और मुझे वो अधिकार दिया है, वो अभिषेक दिया है हर एक चीजों को तोड़ने के लिए। You are discarded because you're rotten. और आपको ऐसे बाहर फेंका गया है क्योंकि आप सड़े हुए हो। Okay? I'm not saying you know, some people say, I am chosen for God. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए चुना हुआ हूँ। If you are chosen for God, और अगर आप परमेश्वर के लिए चुने हुए okay, हो, whole world leaves you. ठीक है, पूरा संसार आपको छोड़ देता है, At least God will be with you. और या सिर्फ परमेश्वर ही आपके साथ I'm रहेगा। not saying God will leave you ever. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर को हमेशा के लिए छोड़ देगा, But I'm saying His favor, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसकी जो करुणा His है, mercy उसकी दया जो है, is very important into our और वो lives. बहुत जरूरी है हमारे जीवनों में। You are discarded from everywhere. और हर जगह से आप बाहर फेंके गए हो, It is because you are rotten from inside. और क्योंकि आप अंदर से सड़े हुए हो। I'm not saying we are a pleasing man, we are man pleasers, no. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें लोगों को या इंसानों को खुश करना है, But I know one thing. लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, When you have the favor of God, you will also have the favor of man in your और life. जब आप परमेश्वर की अगर आपकी करुणा या दया है तो लोगों की भी दया करुणा आपके ऊपर रहेगी, Because God will give that favor. क्योंकि परमेश्वर वो करुणा आप पे देंगे। It's time to change and allow God to change you. और समय है कि हम बदले और हम मौका दें परमेश्वर को हमारे जीवन में हमें बदलने के लिए। What is the time now? और समय किस चीज का है? It's the time to change और समय हमें अपने आप को बदलने का, and allow God to change you. और हम परमेश्वर को मौका दें कि वो हमें बदले। Okay, tell your neighbor somewhere. और बाजू जहाँ आपके बाजू में बैठे हैं बाजू वाले से कहो, It's your time to change और आपका समय है बदलने के लिए, and allow God to change you. और आप मौका दो परमेश्वर को बदलने के लिए। The problem is, nor we allow God to change and we don't change. और समस्या ये है कि हम परमेश्वर को मौका नहीं देते कि वो हमें बदले, और हम खुद भी अपने आप नहीं बदलते। How do you allow God? आप परमेश्वर को कैसे मौका देते हो? By just shutting your mouth and let Him do what He wants to do in और your अपना life. मुंह को बंद करके परमेश्वर को मौका देना कि वो आपके जीवन में जो करना चाहते हैं वो करेंगे। And I tell you, और मैं कहता हूँ, people must have given up hope on you. और जो लोग हैं वो आपके उन्होंने अपनी आशा खो दी होगी, Your own family people must have given up on you. और आपके खुद के परिवार वालों ने आपके ऊपर आशा खो दिया होगा, Your friends must have given up on you. और आपके दोस्त लोग भी आपके ऊपर हार मान गए But I होंगे। want to tell you, God has not given up on you लेकिन today. मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके ऊपर हार नहीं माना है अभी तक, God wants to come and change you completely. और परमेश्वर आना चाहता है, आपको पूरी तरह से बदलना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। God wants to change. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बदले। Let me garbage and baggage be free today in Jesus' name. और जो कचरा है उसे कचरे के डब्बे में जाने दो और हम छुटकारा पाए आज यीशु के नाम में। 2 things today. Pray, Lord, let me be free और 2 चीजों को हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे from garbage और कचरे से, and baggage. और जो बैगेज है उससे। Okay, garbage and baggage. और कचरा और ऐसे बैगेज से। Okay, when we carry baggage, और जब हम ऐसे कचरे के थैले को लेकर चलते हैं, after some time that baggage becomes garbage in your life. और कुछ समय बाद वो जो थैला है वो कचरे के समान बन जाता Today, है। what baggage are you carrying? और आज आप कौन सा थैले को लिए चल रहे हो? Are you carrying the baggage of somebody's hurt? या आप आज किसी के चोट का ऐसे थैले को लेकर चल रहे हो? Are you carrying the baggage of your depression? और आपके निराश पने का थैले को लेकर चल रहे हो? Are you carrying the baggage of your sorrow? और आपके दुखों का आप ऐसे वो थैले को लेकर चल रहे हो? Today is the time. और आज वो समय है Before your baggage becomes garbage, और आपका थैला ऐसे कचरा बनने से पहले the Bible says, बाइबल कहता है, give all your burden to Jesus. और बाइबल कहता है कि अपना सारा बोझ यीशु को दे दो। Come on, give your baggage to God today. और सारा बोझ परमेश्वर को दे दो। What we like is we like to carry baggage with us. और हमको हमें अच्छा लगता है कि हमारा थैला हमारे बोझ को हम लेकर चले, We like to carry worry with us. और हमें चिंता को लेकर चलना अच्छा लगता We है, like to carry sorrow with us. हमें दुखों को लेकर चलना अच्छा लगता We है, are so worried. What will happen tomorrow? और Tomorrow. हम चिंता करते कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। I tell you, मैं कहता हूँ tomorrow is in God's hand. और जो कल है वो परमेश्वर के हाथों में है। God has given you today परमेश्वर ने आपको आज का समय दिया है, to become baggage free and garbage free. और आपको परमेश्वर ने आज का समय दिया है कि आप कचरे से और थैले से स्वतंत्र हो जाओ। Amen. आमेन। Separate yourself from the garbage and baggage. और अपने आप को आप कचरे से और उस
ठेलियों से आप अलग करो। People who speak nonsense, और जो लोग ऐसे मूर्ख वाली बातें करते हैं, just come aside and you read the word of God. That's it. और आप अलग से होकर आंखें आप अलग उनसे हो जाइए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए। You don't need to be a part of their planning and plotting. और आप जो वो लोग ऐसे योजना बना रहे हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप उनका भाग I बनिए। tell you, many people will plan and plot against your life, but they will fail miserably in the name of मैं Jesus. कहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे योजना बनाएंगे, आपके लिए दुष्ट की ऐसे कहानियां बनाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ वो कामयाब नहीं होंगे। I prophesy today in Jesus' name. भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में। From today you will see God is at every step and disarming your enemies right now. और मैं कहता हूँ भविष्यवाणी करता हूँ परमेश्वर आपके हर एक कदम पर है और हर एक शत्रुओं को वो आपसे हराएगा। You know, He is disarming every weapons that they are carrying. और हर एक जो हथियार वो लेकर चल रहे हैं उसे वो नष्ट कर रहा He is है। breaking their hands. He is breaking everything in Jesus' और हर एक name. शत्रुओं के हाथों को वो तोड़ रहा है यीशु के नाम में। And every baggage and garbage be destroyed today in और Jesus' हर एक name. कचरा और हर एक जो थैला है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। It's time to be influencers in the kingdom of और God. वो समय है कि हम प्रभावशाली बने यीशु मसीह के राज्य में। People in the world can influence the whole world. और जो संसार के लोग हैं पूरे संसार को ऐसे प्रभावशाली में हो सकते हैं। Why not you and me can influence the kingdom of God? और क्यों ना हम और आप परमेश्वर के राज्य में प्रभाव डालें। But this is ulta that is happening. और यहाँ पे ऐसे उल्टा हो रहा है। Outside people are influencing us. और बाहर के लोग ऐसे हमें ऐसे प्रभाव डाल रहे हैं। But God does not, that's not the plan of God. परमेश्वर की योजना वो नहीं है। You and I should influence the whole world. और आप और हम पूरे जगत पूरे संसार में प्रभाव डालना चाहिए। How will you influence? आप कैसे करोगे? With rottenness you cannot do it. आपके सड़े हुए पन से आप नहीं कर सकते हो। To reach a position of influence, you need the favor of God. और एक प्रभाव के एक जगह पर आने के लिए आपको परमेश्वर की दया करुणा की जरूरत I tell है। you, you cannot influence even the dog in your house without the favor of और God. मैं कहता हूँ कि आपके घर के जो कुत्ता है उसको भी आप प्रभाव में नहीं डाल सकते जब तक आप परमेश्वर की दया करुणा आपके ऊपर नहीं है। The rottenness should be out. और जो सड़ा हुआ पन है वो बाहर जाना चाहिए आपके And the जीवन में। favor of God should be in. और जो परमेश्वर की दया है वो आपके जीवनों में आनी चाहिए। I pray right now in Jesus' name. प्रार्थना करता हूँ भी यीशु मसीह के नाम में। Let us be the sons and daughters and influencers in the kingdom of और God. परमेश्वर के बेटा और बेटी बने और वो प्रभावशाली बने जो हम दूसरों को प्रभाव डाल सकते हैं। Let it happen in Jesus' mighty और वो name. हो पाए यीशु के नाम में। Let me influence people for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाए। Hallelujah. हालेलुया। Get outside your comfort zone and break the spirit of stagnation. और आपके जीवन में जो आप आराम से रहते हैं वो चीज तो वो उससे बाहर निकल कर जो रुकी हुई चीज है उसे तोड़कर आप बाहर निकलो। How rottenness comes? और सड़ा हुआपन कैसे आ सकता है? When you sit and sit and sit and don't do anything. और अगर आप सिर्फ बैठते हो कुछ नहीं करते हो। The spirit of laziness comes upon you. और ऐसे वो जो आलसी की आत्मा है वो आपके अंदर आ जाती है। You know, your life cannot be successful if you are sitting in your comfort zone. और अगर अपने आराम वाली जगह पर आप बैठे हो आपका जीवन उन्नति में नहीं आ सकता है। लाडला लाडली का टाइम गया, get up and do something for God. और उठ खड़े हो जो परमेश्वर के लिए कुछ तो करो। Your blessing is not where you're sitting in your comfort zone. और आपकी जो आशीष है आप वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आप बैठे हो अपने आराम वाले जगहों पर। Your breakthroughs are waiting out. So get up and take 2 steps and go through your breakthrough in Jesus' और name. आपके विजय आश्रम बाहर रुके हैं और आप अपने 2 कदम को उठाओ और जाओ अपने से विजय पाओ यीशु मसीह के नाम में। Your spirit and you will be rotten if you are stagnant at one place. और अगर आप एक ही जगह पर रुके रहोगे आपकी आत्मा और आप सड़ जाओगे। You know, many people say, I'm praying, but you don't only pray, you get your prayers into action, do something. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ प्रार्थना ही मत करो, लेकिन आप उसके कार्य में लेकर आओ। Come out through the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बाहर आ जाओ। Nothing replaces the word of God. और कोई भी चीज परमेश्वर की जगह को नहीं ले, परमेश्वर के वचनों को जगह नहीं ले सकता। The first step to coming out of a comfort zone is with the word of God. और पहला कदम अपने आराम वाले जगहों से बाहर निकलने के लिए है वो है परमेश्वर का वचन। Nowadays, if you say anything to anybody, you know, they get offended. और आज के समय में अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है। That time also people were offended to Jesus. What to say? और उस समय भी लोगों को बुरा लगता था यीशु के समय में भी। I tell you, मैं कहता हूँ we do not need to have the spirit of offense into our life. और हमारे जीवन में जो हम बुरा मानते हैं वो आत्मा हमें लेकर नहीं चलना है। But we need to have a spirit of correction, a spirit
that will make us from one place to another place, that will take us from one level to another level. और वो आत्मा को लेना है जो हमारे जीवनों को सही कर पाए, और वो आत्मा जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। Mimosa plant, do not touch me. और मिमोसा जो झाड़ होता है, जो पत्ता होता है, इसका मतलब है कि मुझे छुओ मत। You try and correct somebody through the word, और आप वचन के द्वारा किसी को आप सही करो, they will never agree. वो कभी भी सहमति में नहीं होगी। Even if Jesus comes and tells them, some people they don't agree. और यीशु मसीह भी आकर अगर आपसे कहेगा तो वो भी फिर भी नहीं They will have all nonsense explanation. और सारे वो उनके पास सारे हर चीज का एक्सप्लेनेशन रहेगा। You know, for every offense they will, speak in defense. और हर एक चीज जो वो बुरा मानते हैं तो वो हर एक चीज अपने विरोध में बात करते हैं। They will try to defend themselves every time. और वो अपने आप को ऐसे सही करने में ऐसे रखेंगे हमेशा। What I'm trying to say is, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, when you get out of your comfort zone, जब अपने आराम वाले जगह से आप बाहर निकलोगे, God is going to polish you. परमेश्वर आपको ऐसे पॉलिश करेगा। He is going to make you, He is going to break you, He is going to recreate you. और वो आपको बनाएगा, वो आपको तोड़ेगा और फिर से आपको रचाएगा। Associate with godly people who can guide you and pray for you. और उन लोगों के साथ जुड़िए जो परमेश्वर के साथ सहमति में है और वो आपकी अगुवाई करेंगे। Okay, don't associate with Tina, Meena, Dina, Tina. Okay, associate with godly people. और जो लोग परमेश्वर के वचनों में है उनके साथ आप जुड़े रहिए। People who can guide you through the word of God. और जो लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे, Always honor them. हमेशा उनका आदर कीजिए। Okay, and always whatever they say, it should be alignment with the word. और जो भी वो कहते हैं परमेश्वर के वचन साथ वो से जुड़ना चाहिए। Don't talk in the air. और ऐसे हवा में बात मत कीजिए। Let's come to ground reality and check with the word of और God. हम जमीन पे आकर सच्चाई में साथ में आएंगे और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के साथ वो जुड़ रहा है या नहीं। An iron will sharpen the iron. और एक लोहा है वो लोहे को ऐसे शार्प करता है। If you want to be an eagle, if you want to fly like an eagle, stop being with the chickens. और अगर आपको गरुड़ बनना है तो चिकन के साथ रुकना बंद कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। You and I need to take a decision और आपको और हमें से निर्णय लेने के लिए जरूरी है that from today, और आज से I'm not going to waste my time in gossiping and here and there. इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया. I'm not going to be with the chickens. I'm going to be with the eagles in Jesus' और मैं name. मेरा समय जो व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं लोगों के साथ यहाँ बातें नहीं करूंगा, और लेकिन मैं से चिकन नहीं रहूंगा, लेकिन मैं ईगल के समान उड़ूंगा। When you become a chicken, somebody will one day eat you. और अगर आप चिकन बनोगे तो कोई आकर आपको काट के खा लेगा। But when you are an eagle, nobody can touch you. लेकिन अगर आप ऐसे गरुड़ ईगल रहोगे तो कोई आपको छू नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And God has called us to fly like an eagle. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है ऐसे ऊंचा उड़ने के लिए। Associate with the Father. और पिता के साथ आप संगति में रहो। Okay, how you will break the spirit of stagnancy? You have to associate with somebody who can guide you. और ऐसे आप जो रुके हो, जो आप जहाँ पर आप रुके हो, आप कैसे तोड़ोगे? जब आपको एक ऐसे पिता से जुड़ना है जो आपकी अगुवाई करे। Nowadays, everybody is a father. और आजकल सभी लोग पिता बन गए हैं। पान वाला is also father, दूध वाला is also father. What to do? और जो पान वाला है वो भी पिता है और दूध वाला है वो भी पिता है। But I tell you, some things that you need to see in the person. लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें आपको देखना है इस व्यक्ति में। He should love you. वो आपसे प्रेम करेगा। And when love comes, by default correction comes. और जब प्रेम होता है तो अपने आप वो आपके जीवन में सही करेगा चीजों को। And he will speak life in your life. और वो आपके जीवन में जीवन को घोषित करेगा। He pushes you. वो आपको आगे धकेलेगा। And most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण बात, he is happy when you go ahead of him. और वो खुश रहेगा जब आप उसके आगे बढ़ोगे। Jesus told their disciples, you will do greater things than me. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो मैं कर रहा हूँ तुम उनसे महान कामों को करोगे। Was Jesus jealous? Oh, I healed one and the disciple healed three? और No. यीशु मसीह ने ऐसे ईर्ष्या रखी कि मैंने एक को चंगा किया और चेलों ने 3 को चंगा किया? The नहीं। plan of God is to you and me to move in His glory. और परमेश्वर की योजना है कि आप और हम उसकी महिमा में चलें। A father loves, एक पिता प्रेम करता है, corrects, और एक पिता सही करेगा आपको, pushes you, और एक पिता आपको आगे धकेलेगा, encourages you. और एक पिता आपको प्रोत्साहित करेगा। Most importantly, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण mark बात, this, sir. और ये आप ऐसे मार्क कर दीजिए, When you do something in your life, जब आप अपने जीवन में कुछ करते हो He is happy. वो खुश हुए। If He is not happy, अगर वो खुश नहीं है you know He is not a father. और आप जानोगे कि वो पिता नहीं है। And finally, I want to conclude. और अंत में मुझे एक बात कहना है, You and I, और आप और हम,
are called to do greater things and to reveal His glory. और आप और हम बुलाए गए हैं ऐसे उस महान काम करने के लिए और उसकी महिमा प्रकट करने के लिए। So what is the purpose of our life? और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? Eat, drink, sleep and repeat. और खाना, पीना, सोना और फिर से वही दोहराना। Is that the purpose of our life? और क्या हमारे जीवन का उद्देश्य वो है? No, that is not a purpose. नहीं, वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। The purpose is we are called to do greater things. और वो उद्देश्य ये है कि हम बुलाए गए हैं महान कामों के लिए। You are called for what God has called us. और आप बुलाए गए हो जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You are called to do things which God wants us to do. और आप वो चीजें करने के लिए बुलाए गए जो परमेश्वर चाहते हैं हम करें। Many people are just sitting after 10 years, 20 years, 50 years, I don't know from how many years. और बहुत सारे लोग 10-20 साल से बैठे, मैं जानता भी नहीं कितने सालों से। I'm waiting for the Lord to do something. और मैं रुका हुआ कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ बात करे। After 30 years also I'm waiting on the Lord. और 30 साल के बाद भी मैं परमेश्वर के लिए रुका हुआ हूँ। You wait and one day you will go to heaven. और आप रुको और एक दिन स्वर्ग चले जाओगे। I tell you, the moment we are mature in Christ. मैं कहता हूँ जिस समय हम समझदार बनेंगे यीशु मसीह The में। Bible says even from before the foundation of the world, और बाइबल कहता है संसार की नींव से पहले भी God has called us. परमेश्वर ने हमको बुलाया है। So when we are on the earth, जब हम इस संसार जगत में रहते हैं, when we get the maturity as sons and daughters of और God, जब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के कारण हमें वो समझदारी आती है, what is it that you and I are waiting on? और वो क्या है कि आप और हम किस चीज के लिए रुके हुए हैं? God is waiting on you and us now. और परमेश्वर आपके और हमारे लिए रुके हुए हैं अभी। What you and I want to do, God is waiting for His plans to come to pass. और आप और हम जिसके लिए रुके हुए परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी योजना हमारे जीवन में आ जाए। Let's read John chapter 14 verse 12. और आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:12। John chapter 14 और आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 verse 12. और 12वां वचन। Okay? और आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:12 और वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वर्णन इनसे भी बड़े काम करेगा। Yes. What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? मैं तुमसे क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच सच कहता सच हूँ। सच कहता हूँ। Jesus is saying, I tell you truly. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। Most assuredly, I tell you. और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है, I am talking the truth. That he who believes in me, the works that I do, he will do also. और वचन फिर से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, हाँ। यह काम जो मैं करता हूँ, यह काम जो मैं करता हूँ, so whatever I do, he will do it. That is definitely. और जो भी वो करना चाहता है वो करेगा। But what God is saying further, लेकिन परमेश्वर आगे क्या कह रहे हैं? and greater works than these he will do. इनसे भी बड़े काम करेगा। What are you and I called for? और आज हम आप और हम किसके लिए बुलाए गए हो? Not to live a normal life. और एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं। Not to live an abnormal life. और ऐसा जीवन जो ऐसे abnormal है वो जीवन जीने के लिए नहीं। But to live a supernatural life that is normal in the eyes of God. और ये अलौकिक जीवन जीने के लिए जो परमेश्वर की आंखों के सामने साधारण है। You and I are not designed to live normally. और आप और हम ऐसे बनाए नहीं गए हैं साधारण जीवन जीने के लिए। We are designed to live supernaturally. और हम बनाए गए हैं अलौकिक जीवन जीने के लिए। We are designed to have supernatural faith. और हम बनाए गए हैं अलौकिक विश्वास को पाने के लिए। We are designed to receive the things of God. और हम बनाए गए हैं परमेश्वर की चीजों को ग्रहण करने के लिए। Let's read the last scripture and then we can और close. आखिरी का वचन हम पढ़ेंगे फिर हम बंद करेंगे। Ephesians chapter 2:10. और हम जाएंगे इफिसियों की किताब 2:10 और इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। Yes, what the word says? और वचन क्या कहता है? For we are his workmanship. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। So who made you? और आपको किसने बनाया है? Your father and mother didn't make you. God made you and sent them through him. और आपके माता पिता ने नहीं बनाए हैं लेकिन परमेश्वर ने आपको रचाया है, उनके द्वारा भेजा है। You are the workmanship. और आप बनाए गए हुए हो। God has
created you, परमेश्वर ने आपको रचाया है crafted you, और परमेश्वर ने आपको अच्छी तरीके से बनाया है designed you. और आपको ऐसे डिजाइन किया है। So, for we are His workmanship and created in Christ Jesus for what? क्योंकि हम अपने बनाए हुए हैं और प्रभु मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूजे गए हैं। Yes, we are called for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। Hallelujah. हालेलुया। God has already prepared the things beforehand for you और and me. परमेश्वर ने पहले से ही सब चीजों को रचा के रखा है आपके और हमारे आने से So पहले you ही। and I are not called to live natural life, we are called to live a supernatural और life. आप और हम साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं लेकिन अलौकिक जीवन जीने के लिए आए हैं। So what is rottenness? और सड़ा हुआपन क्या है? Decaying, और ऐसे सड़ जाना corrupt. और करप्ट होना। Rottenness does not start from outside, it is the thing of inside. और सड़ा हुआपन जो है वो बाहर से शुरुआत नहीं होता है लेकिन अंदर से सड़ जाता है। If you are rotten, you will be forgotten. और अगर आप सड़े हुए हो तो आप भूले जाओगे। Get outside your comfort zone and break the spirit और of stagnancy. अपने आरामदायक जगह से आप बाहर निकलो, रुकेपन की आत्मा को आप तोड़ो। And finally, we conclude और अंत में यही सीखा that God has called us to do greater things and walk in His कि glory. परमेश्वर ने हमें बड़े महान काम करने के लिए बुलाए गए, उसकी महिमा में चलने के लिए बुलाया है। And this will only happen when we break that rottenness from और us. ये जब होगा जब हम सड़े हुएपन को निकालेंगे हमारे जीवनों से। Come on, let us pray right now. आइए हम प्रार्थना करेंगे अब। I want you to just whatever is around you, just every distraction, just finish it. Just focus on God right और now. मैं चाहता हूँ कि आपके आजू बाजू इर्द गिर्द जितनी भी गड़बड़ी है आप सब चीज भूल कर परमेश्वर की ओर सिर्फ ध्यान लगाएंगे। Okay, just focus on God right now. सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे। Ask the Holy Spirit today. पवित्र आत्मा से मांगिए What is that rotten area in your life? और आपके जीवन में सड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा है? Maybe anger, शायद गुस्सा, maybe hurts, शायद दुख चोट maybe taking decision impulsively, और शायद जो निर्णयों को लेना गलत तरीकों से maybe not accepting correction. और शायद जो कोई आपको सही करता है वो आपसे ग्रहण नहीं कर पाते हो। You know, I don't know, I feel you might even hate God for things that have happened in your life. और मैं नहीं जानता हूँ लेकिन जो चीजें आपके जीवन में हुई मुझे महसूस हो रहा है कि आप परमेश्वर से बैर भी रखते होंगे। Ask the Holy Spirit today right पवित्र now. आत्मा से मांगिए आप। As we pray together, और जैसे हम एक साथ प्रार्थना करेंगे ask Him what is the rotten area of your life. और आप उनसे पूछिए कि आपके जीवन का सड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा है। One of the main reason the blessing is stopped because the area is rotten. और हमारी जो आशीष रुकी हुई है वो इस कारण है क्योंकि हमारा जो भाग है क्षेत्र है वो सड़ा हुआ Once है। God cleanses, और जो परमेश्वर शुद्ध करता है everything will be fine. हर एक चीज ठीक हो जाएगा। Father, right now in Jesus' name, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम we में thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। Father God, the Holy Spirit, we ask you, Lord, we ask you to cleanse us, my Master. और जो मांगते हैं हम आज सुबह इस सुबह कि आप हमें शुद्ध कीजिए। Father, every spirit of being stagnant, और पिता परमेश्वर हर एक जो आत्मा जो एक जगह पर रुकी गई है Father God, the stagnancy in work, the stagnancy in the spiritual life, stagnancy in finances, this morning, Father, right now be broken in Jesus' mighty name. और पिता परमेश्वर हमारे कामकाज में हमारे आर्थिक जीवनों में हमारे आत्मिक जीवन में हर एक जगह पर जो ये एक चीज जो है हम रुके हुए हैं उसे हम तोड़ते हैं सुबह यीशु मसीह के नाम में। Father, let it be broken completely, taken off in the name of Jesus. और वो पूरी तरह से टूट जाए और बाहर निकाला जाए यीशु मसीह के नाम में। Every power of darkness, हर एक अंधकार की शक्तियाँ right now be broken in Jesus' अभी name. इसी वक्त टूट जाए यीशु के नाम में। Holy Spirit, पवित्र आत्मा we once again call out to you. और फिर से और एक बार आपके नाम को We पुकारते call हैं out in the name of Jesus. और हम पुकारते हैं यीशु मसीह के नाम Help में। us, Lord. हमारी मदद कीजिए। Father, so many years, so many days we kept that dark area in our life. और पिता परमेश्वर इतने सारे साल इतने सारे समय तक हमने वो अंधकार की जो क्षेत्र है वो हमारे दिलों में ही रखा है। But today, Father, this is the day, Lord, that we get rid of every rottenness. और लेकिन आज का वो दिन है परमेश्वर हर एक सड़े हुएपन से हम छुटकारा पाए। Father God, every area of our life that is not in our control. और पिता परमेश्वर हर एक जीवन का क्षेत्र जो आपके नियंत्रण में नहीं है Today we voluntarily ask you, Holy Spirit, to come and take complete control of our life. और पिता परमेश्वर हम खुद ही मांग रहे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने हमारे जीवन का नियंत्रण
नियंत्रण ले लो और सभी चीजों को बाहर निकाल दो। Take control of our jobs, हमारे काम काजों को अपनी नियंत्रण our ले लो। finances, हमारे आर्थिक जीवन our का, spiritual life, आत्मिक जीवन का, our faith, विश्वास का, our anointing, अभिषेक का, our decisions, और निर्णयों का, everything take complete control. और हर एक चीजों का नियंत्रण आप ले And लीजिए। Father, whatever is not from you, Lord, take it out. Take it out today in Jesus' name. जो भी आपकी ओर से नहीं उसे बाहर ले लो यीशु मसीह के नाम I see में। many of you watching right now. The power of God is touching you, and you are getting delivered from your areas. और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का सामर्थ जो बहुत लोग देख रहे हैं अभी इसी वक्त छू रहा है, आप छुटकारा पा I रहे see हो। the power of God touching you from head to toe, right now in Jesus' name. और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का सामर्थ छू रहा है सिर से लेके पैर तक इसी वक्त यीशु के नाम में। Yes, that power of deliverance is flowing from your stomach. It's flowing. It's breaking every chain और right वो now. छुटकारे का सामर्थ आपके पेट से बह रहा है, वो टूट रहा है यीशु के नाम में। I see the power of God is breaking bondages, breaking chains, breaking strongholds in your life और मैं today. देख रहा हूँ परमेश्वर का सामर्थ आपके हर एक जीवन को बंधनों को और स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को तोड़ रहा है। Some of you that are watching right now, और कुछ लोग जो देख रहे हैं अभी, you are under prolonged illness. और आप ऐसे बहुत सारे सालों से आप ऐसे एक रोगी या दुख में हो। God is breaking that sickness, the power of sickness, that rottenness in your life of unforgiveness is broken this morning in और Jesus' परमेश्वर name. वो बीमारी का सामर्थ को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, और जो आपने जिसको क्षमा नहीं किया है उसी को भी तोड़ रहा है I यीशु tell के you, नाम people में। who have unforgiveness, this is the time that you confess everything before the Lord and forgive and release in Jesus' और मैं name. कहता हूँ जिन लोगों ने लोगों को क्षमा नहीं किया है, ये समय है कि आप क्षमा करके परमेश्वर के नियंत्रण में आ जाओ। God is doing a new thing, परमेश्वर एक नई चीजों को कर रहा This है, is what the Lord says. और ये चीज परमेश्वर कह रहा है, I am doing a new thing in your life. और मैं नई चीजों को कर रहा हूँ आपके जीवन में। I am doing a new thing. From today I am writing, I am doing a new thing in your life. और आज से मैं आपके जीवन में नई चीजों को कर रहा हूँ। Thank you, Holy Spirit of God. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit of God. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Every addictions be broken. और हर एक बुरी आदतें वो टूट जाए यीशु के नाम में। Every wrong eyes right now be broken. Every spirit of adultery be cursed in Jesus' हर एक name. बुरी आंखें, हर एक जो व्यभिचार की आत्मा है वो श्रापित हो जाए यीशु के नाम में। Father, right now पिता परमेश्वर अभी, we declare, Holy Spirit, और हम घोषित करते पवित्र आत्मा, that our body is the temple of the Spirit of God. और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। No demon, nothing can touch our body, O और कोई Lord. शैतान हमें छू नहीं सकता है। We declare that we are the child of हम God. घोषित करते हैं परमेश्वर के संतान है, We declare that we are filled in the Spirit of God. और हम घोषित करते हैं पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं। Our ears, our eyes, everything is bind in the name of Jesus to Him. और हमारी आंख, हमारे कान, हमारा मुंह यीशु मसीह के शब्दों और उनकी ही आवाज में बंधा हुआ It is है। under control of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नियंत्रण के नीचे है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you all the praise and और glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते हैं। We bless your name, O Lord. आपके नाम को ऊंचा करते We हैं, thank you, Father, for today's और word. धन्यवाद करते हैं आपके इस शब्दों के लिए, In Jesus' name we और pray. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I believe और विश्वास करता हूँ that God has started new thing. परमेश्वर ने आपके जीवनों में नया शुरुआत करे हैं। I believe मैं विश्वास करता हूँ that new thing is happening in your life. और नई चीजें हो रही है आपके जीवन में, From here, there's no turning back. और यहाँ से फिर से पीछे नहीं मुड़ना।